یہ سلیکٹڈ حکومت، یہ کٹپتلی حکومت اپنا ہی پارلیمان سے ہار چکی ہے اور پاکستان کے عوام جیت چکے ہیں۔ آج جو جمہوریت کا آواز ہے وہ بلند ہو چکا ہے، جو پارلیمان کا وقار ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ جو بھی ظلم ہو، جو بھی جبر ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک ہی سٹانس رہا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور عمران خان کو اپنا ہی اسمبلی سے شکست دلوانا تاریخی کامیابی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا۔ اور ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو، میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے نے سب مل کے نہ صرف اس حکومت کو للکارا، ہم نے ہر میدان بائی الیکشنز میں حکومت کو چیلنج کیا اور ہروا دیا، سینٹ الیکشنز میں حکومت کو چیلنج کیا اور ہروا دیا، اور یہ جو وکٹری ہے یہ نہ صرف ہماری جمہوری جو آواز ہے، ہمارے جمہوری مطالبات ہیں ان کے بارے میں ایک واضح پیغام بھیجتے ہیں، مگر یہ ایک قسم کا عدم اعتماد ہے آئی ایم ایف کی پروگرام پہ، پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ پہ، عوام کی جو معاشی صورتحال ہے اس وقت، جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری چل رہی ہے، اس پروگرام کا بھی ناکامی ہے، اس وزیر خزانہ کا ناکامی ہے جو ہمارا معیشت چلا رہا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی صاحب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں اسپیکر آف دا ہاؤس منتخب ہوا تھا، صدر زرداری کے دور میں وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوا تھا، اور آج کے بعد انشاءاللہ تعالی چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہوگا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپنی جمہوری جدوجہد انشاءاللہ تعالی اگلے مرحلہ میں لے کے جائے گا۔ ہم اسی جنگ کو حکومت کے خلاف، کٹپتلی حکومت کے خلاف اسی جنگ کو جاری رکھیں گے، اور ہر طرف سے حملے ہوں گے، اور انشاءاللہ جلد ہی اس ظالم حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ اگر ان میں کوئی آنر ہوتا تو وہ خود مستعفی ہوتے۔ آج کے بعد عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ تو اب نہ صرف اپوزیشن کا مطالبہ ہے مگر یہ حکومت کے اپنے ممبران کے بھی مطالبہ ہے۔ انشاءاللہ آج میں قائد حزب اختلاف میاں محمد نواز شریف کے پاس بھی جاؤں گا، شہباز شریف کے پاس بھی جاؤں گا، اور پی ڈی ایم کا صدر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی جاؤں گا۔ یہ پاکستان کے تمام جمہوری قوتوں کی جیت ہے، تمام جمہوری سیاسی جماعتوں کی جیت ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی جمہوری سفر میں ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ ہم گیلانی صاحب جو ہمارا وننگ کینڈیڈیٹ ہے اسلام آباد کی نیشنل اسمبلی سیٹ سے، سینٹ کے نیشنل اسمبلی سے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا نیند ہمیں ملے ہیں اس سینٹ الیکشن کی کیمپین کے دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور معزز جو ہمارے لیڈرشپ ہے یہاں موجود ہے، اور ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اختر مینگل صاحب کو، اور مریم نواز صاحبہ کو، اور لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو
और लीडर ऑफ दी पंजाब असेंबली शहबाज वो हमजा शहबाज को और ANP की लीडरशिप को और तमाम लीडरशिप को मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो कामयाबी हुई है ये जमहूरियत की हुई, जमहूरियत को फतह हुई है। और आपने देखा कि PDM ने पहले तमाम जो जितने भी इंतखाबात थे, ज़िमनी इंतखाबात, वो जीते और फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस में भी हमने हिस्सा लिया और सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट थी वो इस्लामाबाद की थी और सबकी निगाहें ये इस्लामाबाद की सीट पर थी और उस पर भी PDM को बहुत कामयाबी मिली। तो मैं इसलिए दोबारा उनको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मेरी मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, हम मौलाना फजल रहमान साहब को जो सदर हैं PDM के, उनके पास भी जाएंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास भी हम जाएंगे क्योंकि उनको वापस जाना होगा, तो इसलिए हम चाहते हैं उनसे पहले हम उनसे मिल लें। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि क्या आप ये कहा करते थे कि ये अदम इत्मीनान होगा, अब क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जा रही है या नहीं? देखो, जो भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का स्ट्रैटेजी होगा वो हम कंसेंसस के साथ इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। लेकिन जो आज का सेनेट इलेक्शन है, जो नेशनल असेंबली में सारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, ये इलेक्शन सिर्फ एक सीट का इलेक्शन इसलिए नहीं है कि पूरा पाकिस्तान वोट कर रहा है, हर इलाका वोट कर रहा है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब हार चुका है। तो अखलाकी बात ये कहता है, मॉरल बात ये कहता है कि उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि इमरान खान साहब इस किस्म का कदम ना पहले उठाया है और ना शायद आज उठाएगा। जो दूसरी बात है कि जो इमरान खान का नाकाम मुआशी पॉलिसी रहा है, जो PT IMF की उसका पहला बजट से लेके आज तक चल रहा है, वो भी रद्द किया गया है नेशनल असेंबली से। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पहले ही ऐलान कर लिया था कि सेनेट इलेक्शंस के बाद मार्चेस भी होंगे और अदम एतमाद भी होंगे, लेकिन हम अपना टाइमिंग खुद चूज़ करेंगे कि हम कब अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करना चाहेंगे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे। एक काम करें, जहाँ आपको ये कहें जी, मैं कमेंट तो जरूर करना चाहूँगा कि एक जरदारी सब पे भारी, और आप अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस तरह गिलानी साहब की नॉमिनेशन के बाद पूरे मुल्क भर में शेक हुई है, उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तो मुस्तकबिल रोशन है और जमहूरियत का मुस्तकबिल रोशन है। एक तो मुबारक हो कि इमरान खान साहब ने भी वोट मुस्तरद करना सीख लिया और लेकिन ये बताइए कि अगला मरहला चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद आज का होगा या अदम इत्मीनान का हो सकता है? दोनों में से पहले कौन सा? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तमाम फैसले कंसेंसस के साथ लेंगे। मैं आज खुद कुछ नहीं ऐलान करूंगा, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके आपके सामने हमारा प्रोग्राम रखेंगे। गिलानी साहब ये फरमाएं, बिलावल साहब से भी आपसे भी सवाल है कि पहले आपने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है सेनेट इंतखाबात में, 2 दिन से 3 दिन से कुछ चेंजिंग जो तब्दीलियाँ नज़र आ रही थी, वीडियो ऑडियो लीक कराई जा रही थी, तो कोई गड़बड़ होने की करने की कोशिश हुई थी आपको हराने की, कोई ये 2 दिन में कोई तब्दीली? आई थिंक जो सबसे ज़रूरी बात यही है कि जीत तो हम चुके हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत चुके हैं, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली के मेंबरान के वोट से जीत चुके हैं। ये पूरा पाकिस्तान का कामयाबी है। मेरा एक सवाल है, अगर हिम्मत है तो करो।
बिलावल साहब ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दफा काउंट हुआ, फिर गिलानी साहब की जीत का ऐलान हुआ, अब तक 3 दफा काउंट हो गया। अभी भी पीटीआई ये कह रही है कि हम अदालत में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, और ये जो वीडियो है इनके ऊपर ये कहते हैं कि खान साहब जो है वो बड़ा स्पोर्ट्समैन था। तो स्पोर्ट्स में आपका ऑनरेबल डिफीट होता है और डिसऑनरेबल डिफीट होता है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को ऑनरेबली हार मानना चाहिए और इस किस्म का नखरे इस वक्त नहीं करना चाहिए। आपका ये स्टांस रहा है पहले दिन से मीडियम के अंदर जो हमारी खबरें आती रही है कि आप इस स्टांस पे कायम थे कि तुझे पहले जाना चाहिए, अगले एतमाद की तरफ आज पूरे एतमाद से आप उसी का नतीजा हुआ कि आज रिजल्ट जो है आपकी उसी मौक़िफ़ की तायद है। ये पीडीएम के अंदर जो आपका नुक्ता नजर था कि हमें इस तरफ पहले जाना चाहिए, लॉन्ग मार्च से पहले इस तरफ जाना चाहिए, अगले एतमाद के पहले। तो अब आपके नुक्ते की पता हुई है तो आप पीडीएम की क़यादत को पार करने में कामयाब हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च आगे देखिए, जीत हार तो अल्लाह ताला की हाथ में होता है, मगर अगर आप लड़ते नहीं हो, आप मैदान में होंगे नहीं, तो जीतने तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। हम जानते थे कि लड़ाई मुश्किल था, मगर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के क़यादत को, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे साथी हैं, कि हमने सब मिल के जब ये लड़ाई, चाहे वो बाई इलेक्शंस का हो, चाहे वो सेनेट का हो, लड़े हैं, तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह भी हासिल कर चुके हैं। अब जो आगे का लाए अमल है वो तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मिल के तय करेंगे। देखें, आज मैंने पहले ही कहा, मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेसी की फतह हुई है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस की फतह हुई है, पीडीएम की फतह हुई है, पार्लियामेंट की फतह हुई है, और मैं पार्लियामेंटेरियंस को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके आने से पहले, इलेक्शन तो आज हुआ है, उनके आने से पहले जो पार्लियामेंटेरियंस, जो पार्लियामेंट का जो रोल था, जो गलती से प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जुडिशरी में भेजा इंटरप्रिटेशन के लिए या राय के लिए, वो रोल बनता नहीं था, वो रोल था पार्लियामेंट का। और हमने वो फतह हासिल की कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी थी, पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी थी, उसको हमने आने से पहले उसको बहाल कर दिया, और आर्टिकल 226 की इंटरप्रिटेशन थी वो भी हमने पूरी कर ली, और जो भी रोल है वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। और जो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट आवाम तक नहीं पहुंच सकती थी, या वो पार्लियामेंटेरियंस तक नहीं पहुंच सकती थी, जो वज़ीर आज़म साहब नहीं मिलते थे, तो हमने उनकी ज़ियारतें मुफ्त करवाई। ये बताइए कि जिस तरह शहर में पेशेंगोइयाँ हो रही है, कि प्लान भी ये है कि सेलेक्टिव के ऊपर नहीं बल्कि सेलेक्टिव के ऊपर तनकीद होगी। इमरान खान हुकूमत की नाकामियाँ देखो, हमने पहले भी ऐसा नहीं, देखो हम जमहूरियत का बहाली चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे। तो जहाँ कोई इदारा अपना काम नहीं करेगा, किसी और का काम में मुदाखलत करेगा, वहाँ तो ज़रूर तनकीद होगी। जो इमरान खान साहब का हुकूमत का पॉलिसीज़ है, जो 3 साल का कारकर्दगी है, वो हम आज से नहीं पहले दिन से आपके सामने पेश कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान के अवाम समझ चुके हैं कि जो बोझ वो इस वक्त उठा रही हैं अपने बिजली की बिल में, अपने खाने पीने की अशिया की बिल में, ये इमरान खान की नालायकी, नाअहली का बोझ है। और उनको ये नहीं उठाना पड़ता अगर इस नालायक हुकूमत हम पे मुसल्लत नहीं किया जाता। तो हमारा जिद्दोजहद वही है, हमारा कोशिश वही है कि हमने इस कठपुतली निज़ाम को ख़त्म करना है, एक अवामी हुकूमत मुंतखब करवाना है जो अवाम का नुमाइंदगी कर सके, जो अवाम का मसाइल हल कर सके। इस वक्त हमारे मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हुकूमत उनको मदद करना चाहिए, हुकूमत को उनको रिलीफ देना चाहिए। लेकिन इस वक्त
हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ पहुँचा रही है। बिलावल साहब, एक पहले भी वो इस्तीफा की तरफ जा रही थी पीडीएम, आप उनको वापस ले आए, तो अभी जब गिलानी साहब कामयाब हुए तो वहाँ पे लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है, तो क्या आप पीडीएम को एडवाइस नहीं करेंगे कि रीथिंक करें, जहाँ तक बाहर के बजाय अदम एतमाद की तरफ जाए? जहाँ तक इस्तीफ़े की बात है, पूरे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कंसेंसस था कि हम अपने अपनी जमातों के क़ियादत तक मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़ा पहुँचाएँगे इस साल का शुरू होने से पहले, और हम ने वो भी किया है। हमने अब बाई इलेक्शंस भी लड़े हैं, हमने सेनेट इलेक्शंस भी लड़े हैं, और जो आगे का लाए अमल होगा वो हम मिल के तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा कोशिश रहा है कि हम जानते हैं, ये पहले हम जानते हैं कि इलेक्शंस में धांधली भी होता है, लेकिन हम फिर भी उन इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, हम फिर भी लड़ते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो 88 हो, चाहे वो 93 हो, चाहे वो 2002 हो, चाहे वो 2007 हो, हमने जब जीते भी है, हमने इलेक्शंस एतराज़ात रिकॉर्ड करते हुए धांधली के बावजूद हुकूमत बनाए हैं। हम चाहते हैं कि साफ़ शफाफ इलेक्शंस हो, हम चाहते हैं कि सब के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, बिकॉज़ हम बिलीव करते हैं कि अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड होंगे, अगर पाकिस्तान के अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, तो फिर वो नुमाइंदे मुंतखब करेंगे जो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो उनका मसाइल हल कर सकते हैं। गिलानी साहब की जीत से पहले ये सामने आया कि हुकूमती वक्त ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वीडियो के बाद गिलानी साहब को नायब करार दिया जाए। आज जीत हुई है, पीपल्स पार्टी को क्या खदशात हैं कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकती है, या जैसे एक जगह पे कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो असेंबलियाँ तहलील कर देंगे, तो क्या खदशात है कि हुकूमत किस हद तक जा सकती है, और क्या आप तैयार हैं उन तमाम चीज़ों के लिए? जहाँ तक ये तो मैंने आज सुबह शायद आपको या किसी और को असेंबली में कहा था कि हमें तो इससे ही अंदाज़ा पड़ता है ना, अगर इलेक्शन से एक रात पहले आपका मुखालिफ इलेक्शन डिले करने की कोशिश करता है, अपना मुखालिफ उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करता है, तो मतलब है उनको पहले से पता था कि हारना ही था उनको, उसको वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे। वो प्रोपेगेंडा के तो माहिर है, लेकिन रिजल्ट्स अब सबके सामने हैं, इलेक्शन हो चुका है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत चुका है। आखिरी सवाल बिलावल साहब, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि 5 साल हर हुकूमत को पूरे करने चाहिए, और पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये भी मौक़िफ़ रहा है कि अपने वज़न से हुकूमत खुद करेगी, तो फिर आप अदम एतमाद ला कर क्या मैसेज? जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ तो जमहूरियत की इंटरेस्ट में होता है, हम वाकई ही समझते हैं कि तुम जमहूरियत की तसलसल के लिए पार्लियामान को अपना टर्म पूरा करना चाहिए था, और जिस तरीके से जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, फिर ट्रांजिशन हुआ और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब मुंतखब हुए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 सालों से ये मुल्क चल रहा है, हमारा मईशत चल रहा है, हमारा जमहूरियत चल रहा है, इस तरीके से रियासतें नहीं चल सकती। हम चाहते हैं कि जमहूरियत फ़ाल हो और चले, मगर अगर कठपुतली वज़ीर आज़म है, कठपुतली स्पीकर है, कठपुतली वज़ीर आले हैं, तो ना मुल्क चल सकता है, ना हमारा जमहूरियत चल सकता है। और हम अपना कोशिश जारी रखेंगे कि ये मुल्क सही सिमत पे आए, कि पाकिस्तान सही सिमत पे आ जाए, ताकि हम अपना अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। जी, First of all, ये जो आज इलेक्शंस था, it was no doubt very interesting. तो आपकी जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस है, उसकी कैंपेन विल इट बी मोर पीडीएम फोकस्ड और पीपल्स पार्टी फोकस्ड? एंड माय सेकंड क्वेश्चन, आपकी बाइडेन इनॉग्रेशन पे आपका इनवाइट आया था, बट ड्यू टू कोविड मेनी ग्लोबल लीडर्स couldn't go. So have you made a telephone call with President Biden? Wow, that's quite a lot of questions. जी, two questions. लोग जहाँ तक प्रेसिडेंट बाइडन का इनॉग्रेशन था, वो तो एक वर्चुअल इनॉग्रेशन था, कोई इन पर्सन वाला इनॉग्रेशन नहीं था, और ना ही मेरा कोई फ़ोन कॉल
किया है प्रेसिडेंट बाइडेन को। जहाँ तक इलेक्शंस है, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूँ और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कैंपेन चलाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाऊँगा। थैंक यू।